Good morning, students. Today we'll discuss about the next topic of our lecture. In this lecture, we should discuss about the activity 5, non-metals, occurrence of non-metals and their physical property. Firstly, we should discuss about the activity 5 to observe displacement reaction. In the displacement reaction, we should take iron nails and put the iron nail in copper sulfate solution. And after some time, we observe displacement reaction. That means they change the color from blue to green. Why they change the color blue to green? Due to the displacement action. That means iron displaces the copper because iron is more reactive than copper. That's why iron displaces the copper from its position and iron attach with the sulfates. That means they form iron sulfate and copper. Okay, students. Now after the displacement reaction, solution become a iron sulfate. Before the reaction solution is copper sulfate, but after the displacement reaction solution is iron sulfate, which turns the green in color after the reaction take place. The deposit on the nails are the copper. Next topic is non-metals. Non-metal occur in free state. Student, first of all, what is free state? That means they occur in free state. Example is, in metal example is golds and platinum, but in non-metal example is noble gases. Noble gases, that means those gases they not react with other. Example is argon, krypton, xenon, etc. Okay, students. What is non-metal and their occurrence? Non-metals occur in free as well as combined state. Combined state means the carbon dioxide, means carbon is combined with oxygen. That means they form carbon dioxide. And free state means carbon present freely in earth crust. Most common example of non-metal occurring in free state are oxygen and nitrogen in atmosphere. They present in free state. Sulfur is found in a free as well as combined state. And noble gases, that means inert gases, means those gases they not react with other gases. Okay, students. Gases such as argon, krypton, xenon, etc. occur in free as well as noble gases such as inert gases. Inert gases means those gases do not react with other. That means argon, krypton, xenon, etc. occur in free states in atmosphere. Occurrence of non-metals. Students, कार्बन देखो क्या होता है. कार्बन जो होता है, सबसे पहले बेटा जो कार्बन होता है, कार्बन हमें मिलता है बेटा 60 to 90% कार्बन कौन से फॉर्म में मिलता है? हमें कोल के फॉर्म में, मतलब कोयला के फॉर्म में. ठीक है बच्चे. उसके बाद हमें ये मिलता है ग्रेफाइट, डायमंड के फॉर्म में. और ये बेटा फ्री स्टेट में मिलता है और कंबाइंड स्टेट में. फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? जो अकेला मिले किससे? अर्थ क्रस्ट से. और कंबाइंड स्टेट का मतलब क्या होता है? जो किसी से जुड़ के मिले. जैसे कार्बन अकेला तो मैं जैसे कोल के फॉर्म में मिला तो अकेला मिला, और जुड़ के मिला तो वो कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है. नेक्स्ट बच्चे क्या है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन होता है मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट में जो प्रेजेंट बेटा कहाँ पे? अर्थ क्रस्ट में. वो कौन सा? ऑक्सीजन. और ये बेटा 23% बाय मास मिलता है एटमॉस्फेयर में. और ये कंबाइंड फॉर्म में मिलता है और फ्री स्टेट में मिलता है. और नेक्स्ट है बेटा हाइड्रोजन. हाइड्रोजन क्या है बेटा? मोस्ट अबंडेंट नॉट इन अर्थ, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन यूनिवर्स. ओके स्टूडेंट्स. सन एंड स्टार्स में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है. ऑन द अर्थ इट अकर कंबाइंड फॉर्म एज वाटर. अर्थ में कहाँ है? कंबाइंड फॉर्म मिलता है. कैसे? वाटर में. जैसे वाटर का फॉर्मूला पता है ना, H2O, मतलब उसमें 2 हाइड्रोजन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है. ठीक है बच्चे. और ये 11% बाय वेट मिलता है हमें. ठीक है बेटा. नेक्स्ट है नाइट्रोजन. 76% बेटा 76% नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में. ठीक बच्चे. ये कंबाइंड स्टेट में मिलता है, जैसे कि नाइट्राइट्स, NO2, N2O. ठीक है बच्चे. ये होता है नाइट्राइट्स, मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ. नेक्स्ट है बेटा सल्फर. सल्फर क्या है? ये फ्री स्टेट में मिलता है अर्थ क्रस्ट में. ठीक बेटा. और कंबाइंड स्टेट में मिलता है ये, मतलब अगर फ्री स्टेट में मिलता है, मतलब ये फ्री स्टेट में मिलता है और कंबाइंड स्टेट में मिलता है. कंबाइंड स्टेट में कैसे मिलता है? ये किसी मेटल के साथ जुड़ा होता है. ओके बच्चे. अगर नेक्स्ट पढ़ोगे फॉस्फोरस. ये बेटा इंपॉर्टेंट रोल है बायोलॉजिकल प्रोसेस में.
ठीक है बच्चा। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। फॉस्फोरस क्या है बेटा, एक वन ऑफ द मोस्ट डिस्पर्स एलिमेंट इन नेचर, ये काफ़ी डिस्पर्स एलिमेंट है नेचर में, और ये कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलता, ठीक है बच्चा। और ये इट फाइंड फॉस्फेट, ये हमेशा फॉस्फोरस हमेशा फॉस्फेट के फॉर्म में मिलता है बच्चे, और ये सिर्फ 0.10% मिलता है हमारे अर्थ क्रस्ट में। 0.10 मतलब 1% से भी काफ़ी कम है, ठीक बच्चे। और बेटा एलोट्रोप का मतलब होता है मोर देन वन फॉर्म, ठीक है बच्चे। जैसे जो फॉस्फोरस है बेटा, वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ये दो तरह के मिलते हैं, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन बेटा मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट है, सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, सेकंड मोस्ट प्रेजेंट कहाँ पे है, अर्थ क्रस्ट में। जैसे कि ये बेटा कभी भी, ये हमेशा फ्री स्टेट में मिलता है। जैसे आपने बेटा राजस्थान में जो देखा है ना रेत, बेटा वो तकरीबन क्या होता है, हमारे अर्थ क्रस्ट में ऐसा कोई भी ऐसी भी चीज़ नहीं, जैसे सीमेंट हो गया, पत्थर हो गया, आप जो भी आसपास चीज़ देख रहे हो बेटा, हर चीज़ में क्या प्रेजेंट होता है, सिलिका प्रेजेंट होता है, ठीक है बच्चे। एग्जाम्पल के लिए सिलिकेट इन फॉर्म, जो आपके घर में लकड़ी के ऊपर माइका लगाते हैं, एस्बेस्टोस होता है, जो क्ले बनता है वो किसका होता है बच्चे, सिलिकॉन का होता है। नेक्स्ट क्या है बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स, और याद रखना बच्चे नॉन मेटल भी तीनों स्टेट्स में मिलते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस का फॉर्म मिलता है। नॉन मेटल्स आर सॉलिड आर कार्बन डाइऑक्साइड और, ठीक है बच्चे। अब देखो बच्चे, नॉन मेटल किस में फॉर्म मिलता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में मिलते हैं नॉन मेटल इन। और इसमें बेटा अगर आपने सॉलिड का एग्जांपल देना है कौन सा, कार्बन एज ए ग्रेफाइट, मतलब कि देखो कार्बन गैस मिलता है, ग्रेफाइट मिलता है, डायमंड मिलता है, ठीक है बच्चा। कार्बन गैस क्या है बेटा वो, ठीक है बेटा। कार्बन देखो, कार्बन गैस क्या है, गैस का फॉर्म है, और ग्रेफाइट और डायमंड क्या है बेटा, सॉलिड का फॉर्म है, ठीक है। सल्फर और आयोडीन भी क्या है, एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। जो बेटा देखो सल्फर और आयोडीन क्या है बेटा, कौन से फॉर्म में मिलता है, ये भी एग्जांपल है किसका, सॉलिड का एग्जांपल है। और क्या है, नॉन मेटल जो लिक्विड के फॉर्म में मिलता है वो कौन सा बेटा, ब्रोमीन है। नॉन मेटल जो गैस के फॉर्म में मिलता है वो कौन सा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, ठीक है बच्चे। ये क्लियर है आपको। अगर पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉन मेटल्स, दे प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट और सॉलिड स्टेट, तो और उसमें आपको तीन ऐसे मतलब आपको तीन ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे जो लिक्विड वाले होंगे, सिर्फ एक होगा सॉलिड वाले में। तो अगर आपको पता होगा कि कौन सा फॉर्म सॉलिड में होता है, कौन सा लिक्विड में होता है, कौन सा गैस में, तो तब आप उसका आंसर दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे, ठीक है बच्चा। नॉन मेटल्स आर द वेरियस कलर, ये काफ़ी सारे कलर में मिलते हैं। एग्जांपल के लिए सल्फर कौन सा कलर में होता है, येलो कलर में होता है। फॉस्फोरस रेड कलर में, आयोडीन किसका, वॉयलेट कलर में। क्लोरीन किसके कलर में होता है बेटा, ग्रीन कलर में होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किसके कलर में होता है बच्चे, ये कलरलेस होता है, ठीक बच्चा। इस क्वेश्चन 1 नंबर का और यहाँ से आ सकता है दूसरे पॉइंट में से, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कलरलेस, तो आपको उसमें से तीन ऐसे दिए जाएंगे जो कलर वाले होंगे, सिर्फ एक होगा जो कलरलेस होगा, ठीक है बच्चे। तीसरा देखो, मोस्ट नॉन मेटल्स, काफ़ी सारे नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं, सिर्फ बेटा एक्सेप्ट ग्रेफाइट एंड सल्फर विच आर ब्रिटल, डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट नाउन सब्सटेंस, ठीक है बच्चा। मतलब कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ ब्रिटल होते हैं और कुछ हार्डेस्ट होते हैं, ठीक है बच्चे। दे यूजली डू नॉट हैव एनी लस्टर, इनका कोई लस्टर नहीं होता, एक्सेप्ट ग्रेफाइट आयोडीन विच हैज शाइन एंड लस्टर, ठीक है बच्चा। और ग्रेफाइट और बेटा कईयों के काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब उनको पिघलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, जैसे कि ग्रेफाइट को काफ़ी ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और रेस्ट ऑफ नॉन मेटल क्या होता है बेटा, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ओके बच्चे। नेक्स्ट देखो, नॉन मेटल ना तो ये डक्टाइल होता है, ना मेलेबल, ना तो इनसे तार बन सकता है, ना तो इनसे शीट बन सकता है, ठीक है बच्चा। इसका मतलब डक्टाइल और मैनेबल का मतलब होता है ना तो इन पे हम हैमर चला सकते हैं, ना इनसे हम शीट बना सकते हैं, ना तो इनसे हम तार बना सकते हैं। नॉन मेटल डू नॉट मेक एनी साउंड, और नॉन मेटल को आप अगर हैमर से स्ट्राइक करोगे उसमें वो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा, पर मेटल साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है बेटा। नॉन सोनोरियस बोलते हैं इसलिए इसको। डिफाइन नॉन सोनोरियस, तो आप बोलोगे नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, ठीक है बच्चे। डेंसिटी बेटा काफ़ी कम हो, डेंसिटी नॉन मेटल काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं, ठीक बच्चा। नॉन मेटल डू नॉट कंडक्ट, और ये भी देखो
अब मेटल्स कंडक्ट करता है, हीट कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, पर नॉन मेटल नहीं करता है। ठीक है बच्चा, या तो नहीं करता या तो काफ़ी पुअर होता है। जैसे ग्रेफाइट करता है, इसमें भी एक एक्सेप्शन है बच्चे, ग्रेफाइट करता है पर कम करता है बाकी के मुकाबले। ठीक है, मेटल के मुकाबले कम करता है वो इलेक्ट्रिसिटी पास अपने अंदर से। ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शनल नॉन मेटल। और देखो बेटा पर देखो यहाँ पे ये लाइन क्या बोला कि ये कंडक्ट नहीं करता, पर क्या नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, ग्रेफाइट एक्सेप्शनल मेटल है, जो क्या करता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चा, इसलिए इन्हें हम यूज़ करते हैं सेल्स में, और इसलिए हम यूज़ करते हैं इससे इलेक्ट्रिक सेल्स में। ठीक है बच्चा, इन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग यूनिट ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड आर सेपरेटेड स्मॉल गैप। ठीक है बच्चे, आप अपने सेल्स में देखा होगा ना, 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक इस तरफ लगा होता है, एक इस तरफ लगा होता है। ठीक है बच्चा, ए हाई वोल्टेज करंट ही पासेस थ्रू इनकम्प्लीट सर्किट ड्यू टू द, इसमें बता, इस वाले पॉइंट में जो आपको बताया गया, इस वाले पॉइंट में यही बताया गया कि हम ग्रेफाइट को एज ए सेल कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, उनको एक गैप में हम रखते हैं। ठीक है बच्चे, गैप में रख के क्या करते हैं, उसमें से बेटा करंट पास करते हैं। करंट पास करने से क्या होता है बेटा, उसमें बेटा क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है बच्चे, अब ये हो सकता है चीज़ें बेटा आपको टर्म समझ ना आ रहा हो, कोई बात नहीं बच्चे, अगर यहाँ आपको नहीं समझ आएगा तो नेक्स्ट इसके लिए भी कुछ चैप्टर्स हैं। ठीक है बच्चे, वो हम पढ़ेंगे जब नेक्स्ट, तो मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा कि पोटेंशियल्स क्या होते हैं, वोल्टेजेस क्या होते हैं। ठीक है बच्चे, जब बेटा हाई पोटेंशियल जनरेट होता है किसमें, 2 इलेक्ट्रोड, मतलब ये इलेक्ट्रोड में, तो क्या होता है बेटा, जो करंट होता है वो पास होता है, इधर से इधर पास होना शुरू होता है। ठीक है बच्चे, करंट पास होता है, जिस करके क्या होता है, अगर आपने उसमें कोई लाइट लगाया है, क्या बोल रहा है ये कि करंट पास होता है, और समटाइम वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, स्पार्क। आपने देखा ना, अगर आप 2 वायर्स को एक साथ लगा दो अगर लाइव वायर को, तो वो स्पार्क प्रोड्यूस करता है। उसके पीछे भी रीजन है, बिकॉज उसमें क्या होता है बच्चे, हाई पोटेंशियल होता है। और इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग यूनिट्स। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि एक वायर ये होता है, ठीक है बच्चे, दूसरा वायर ये होता है। ये मान लो मैंने इस पोर्शन को वेल्डिंग करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस वायर को यहाँ जोड़ कर रखता हूँ, फिर क्या करता हूँ, ऊपर वाले वायर को मैं जैसे यहाँ लगाता हूँ, सर्किट कंप्लीट होता है। मतलब ये वायर तो पहले जुड़ा, ये जैसे लगाओगे आपने, ये सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक, सर्किट कंप्लीट हो गया, इससे करंट होते हुए इसके अंदर आने लग पड़ा, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर आने लग पड़ा, और जैसे इसके अंदर आओ बेटा, काफ़ी ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है, जिस करके क्या होता है, वहाँ पे एक ब्रिलियंट लाइट जलता है और वेल्डिंग होना शुरू हो जाता है। ठीक है बच्चा, वेल्डिंग की दुकान पे वेल्डिंग ऐसे ही होता है। ओके बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू फॉर टुडे।